Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Today we discussed about the topic of our class 12, subject is business study, factors affecting the requirement of fixed capital. In our previous video, I already discussed with you about the factors affecting the requirement of fixed capital, and the remaining parts which I not discussed with you in our previous class, today I discuss with you the factors affecting the requirement of fixed capital. The factors name is nature of business, scale of operation, choice of technique, technology upgradation, growth prospectus, diversification, financing alternative, and level of collaboration. There are 8 factors affecting the requirement of the fixed capital. In our previous video, the nature of business, scale of operation, choice of technique, and technology upgradation I already discussed with you, but today I will discuss about all the remaining factor. But before explaining that factor, I explain the first 4 factor in brief. Nature of business. Nature of business, there are 2 type of the nature of business: manufacturing business and trading business. In manufacturing business, we require more fixed asset, so we need more fixed capital. And in our trading business, we need less fixed capital because we need less fixed asset. So on the basis of nature of business, in manufacturing business, we require more fixed capital, and in trading, we require less fixed capital. On the basis of scale of operation, there are 2 type of the scale of operation business: large scale as well as small scale. In large scale operation, we require more fixed capital because due to the scale of operation is large, we require more fixed asset. And in the small scale, we need less fixed capital due to the no need of fixed asset or less need of the fixed asset. Choice of technique. अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निक को यूज कर रहे हैं तो हमें नई नई टेक्निक को परचेज करना पड़ेगा, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. और अगर हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनुअल बेसिस पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे लेबर काम कर रही है, किसी भी टाइप की कोई भी टेक्निक मशीनरी यूज नहीं हो रही, तो वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. अगर हम टाइम टू टाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो टेक्निक यूज हो रही है उसको अपग्रेड कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो उस केस में नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए हमें ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए. और अगर हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओल्ड टेक्निक को यूज कर रहे हैं, अपनी टेक्निक को अपग्रेड नहीं कर रहे, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी. नाउ द रिमेनिंग 4 पार्ट्स ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल वी डिस्कस्ड इन विद यू इन एक्सप्लेन. The 5th part is growth prospectus. Growth prospectus means there is a chance for the business to grow in future. Means there is an opportunity available for the business organization to expand itself in the future. If there is a growth prospectus in a future for the business organization, we need more fixed capital. Why? Because for expansion of business, we require more fixed capital due to the reason of the purchasing of the large amount of the fixed asset. अगर हमें फ्यूचर में ग्रोथ होने के चांसेस लग रहे हैं, हमारे पास ग्रोथ करने की अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के चांसेस है, तो हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी.
और वो ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि उस केस में हमें ज्यादा लार्ज अमाउंट में फिक्स कैपिटल को इन्वेस्ट करना होगा, फिक्स्ड एसेट हमें परचेज करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, अगर बिजनेस में किसी भी टाइप की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, देन देयर इज नो नीड टू एनी टाइप ऑफ द फिक्स्ड एसेट। हमें फ्यूचर में और कोई फिक्स्ड एसेट परचेज नहीं करनी पड़ेगी। और अगर हमें फ्यूचर में कोई फिक्स्ड एसेट परचेज नहीं करनी पड़ेगी तो इसका मतलब हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। तो ये आपका नेक्स्ट फैक्टर था, फिफ्थ फैक्टर, कि इसके बेस पर अगर फ्यूचर में ग्रोथ करने के चांसेस ज्यादा है, अगर हमें लगता है कि हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आज स्मॉल स्केल पर बिजनेस है, मीडियम स्केल पर या लार्ज स्केल पर ले जा सकते हैं, तो फ्यूचर में हमें ज्यादा अमाउंट में फिक्स्ड एसेट परचेज करनी पड़ेगी। और अगर ज्यादा अमाउंट में फिक्स्ड एसेट परचेज करनी पड़ेगी तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। ऐसे ही अगर फ्यूचर में हमारे पास कोई भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते, तो वहां पर हमें किसी भी टाइप की कोई भी फिक्स्ड एसेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और अगर फिक्स्ड एसेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? कम होगी। ये हमारा जो है फिफ्थ फैक्टर था, ग्रोथ प्रोस्पेक्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे, द सिक्स्थ फैक्टर ऑफ द अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज दैट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन means to diversify our business. Diversify means to produce more than one product. If a business organization opt to diversify business, then it will use the expand our business with the help of producing more than one product. If a business organization produce one product at a time and do not want to diversify business, not diversify, then we require less amount of the fixed capital. तो हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहते। एक ही प्रोडक्ट है, उसके लिए जो भी मशीनरी हमने बिजनेस में परचेज कर रखी है उसी के बेस पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा वर्क चलता रहेगा। लेकिन अगर हमारा बिजनेस जो है वो मोर देन वन प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करे, तो इसका मतलब हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही होता है टू प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट। तो हमने अपने बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर दिया। अब डाइवर्सिफाई किया है तो इसका मतलब हमें लार्ज अमाउंट में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें फिक्स्ड एसेट परचेज करनी पड़ेगी और जहां फिक्स्ड एसेट परचेज करनी है वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हम अपना बिजनेस जो है वो कर रहे हैं, एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने बिजनेस को ऐड करना चाहती है और वो ये चाहती है कि वो पेपर को भी मैन्युफैक्चर करे। तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फिक्स कैपिटल की अलग रिक्वायरमेंट होगी, वहां की फिक्स्ड एसेट अलग और यहाँ की फिक्स्ड एसेट अलग। तो इसका मतलब हमें जो है ज्यादा फिक्स्ड एसेट परचेज करनी होगी। तो डाइवर्सिफिकेशन के केस में हमें मोर फिक्स कैपिटल चाहिए। तो ये डाइवर्सिफिकेशन आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट का सिक्स्थ फैक्टर था, जिसके बेस पर हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होगी। इसके बाद नेक्स्ट वन है आपका सेवन फैक्टर, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव का मतलब है कि हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड एसेट को परचेज करना है, तो फिक्स्ड एसेट को परचेज करने के लिए हम लार्ज अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी फिक्स्ड एसेट हमें परचेज करनी है तो उसको परचेज करने के टाइम हमें लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। इसका मतलब फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स कैपिटल। लेकिन अगर हमारे पास एक फाइनेंशियल अल्टरनेट ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि उस असेट को परचेज करने की बजाय हमें वो असेट रेंट पर मिल जाए, तो उस केस में हमें उस फिक्स्ड असेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी और हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अब ऐसी अपॉर्चुनिटी बिजनेस को कैसे अवेलेबल हो कि उसे फिक्स्ड असेट को परचेज ना करना पड़े, बल्कि उसको कोई भी फिक्स्ड असेट जो भी उसे यूज करनी है वो रेंट पर मिल जाए। एक ऐसा ऑप्शन होता है कि हमें जो असेट है वो लीजिंग पर अवेलेबल हो जाए।
लीजिंग एक फाइनेंशियल अल्टरनेट है जिसमें हमें असेट परचेज नहीं करनी पड़ती, हम उस असेट को ओनर की परमिशन से हम उसको यूज कर सकते हैं जितने टाइम के लिए, और यूज करने के बदले हम उसे रेंट देना पड़ता है जिसको लीज रेंट बोलते हैं। तो वहां पर हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, और अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है तो हमें उस फिक्स असेट को परचेज करना होगा, और फिक्स असेट को परचेज करना होगा तो लार्ज अमाउंट हमें इन्वेस्ट करनी होगी। अब लीजिंग क्या होता है उसको देखिए। लीजिंग एक टर्म है, एक ऑप्शन है आपका, इसके अंदर जो पार्टी है आपकी ओनर ऑफ द असेट, वो एक ऑप्शन प्रोवाइड करती है दूसरी पार्टी को कि उसे जो भी असेट है उस असेट को वो यूज कर सकता है फॉर द फिक्स टाइम, और फिक्स टाइम के यूज करने के लिए उसे कंसिडरेशन के तौर पर एक फिक्स्ड अमाउंट मिलती है जिसको रेंट बोला जाता है, लीज रेंटल। तो इसमें एक पर्टिकुलर पार्टी जिसकी फिक्स्ड असेट थी वो दूसरी पार्टी को अपनी फिक्स्ड असेट यूज करने के लिए राइट प्रोवाइड करता है, और उसके बदले कंसीडरेशन के तौर पर क्या लेगा, लीज रेंटल। जैसे ही ये टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, आपकी जो पार्टी है लेसर, वो लेसी को ये कहेगी कि अगर आप इस प्रॉपर्टी को दोबारा लीज पर लेना चाहो तो दोबारा लीज पर ले सकते हो, या फिर उसको ये ऑप्शन दे सकती है कि ये एसेट अगर आप परचेज करना चाहो तो आप परचेज भी कर सकते हो। तो इसीलिए फाइनेंसिंग अल्टरनेट ये है कि कोई भी अगर आपको फिक्स्ड असेट परचेज करनी पड़े तो वहां पर तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि हमें फिक्स्ड असेट परचेज ही ना करनी पड़े, हमें वो असेट एज ए लीजिंग मिल जाए, तो हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। Now the last factors affecting the requirement of the fixed capital is the level of collaboration. लेवल ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब है कि हम दो पर्टिकुलर फर्म, दो पर्सन या दो फर्म मिलकर कोई फिक्स्ड असेट परचेज करें ज्वाइंटली, तो उसको लेवल ऑफ कोलैबोरेशन बोलते हैं। जैसे हो सकता है कि आपकी दो पर्टिकुलर पर्सन है, कोई भी फिक्स्ड असेट परचेज करनी है, उसको अगर वो सेपरेट परचेज करेंगे अलग अलग, तो उस केस में एक पर्टिकुलर पर्सन ए को भी उतने ही पैसे लगाने पड़ेंगे, बी को भी। अब दोनों पर्सन एक दूसरे से कोलैबोरेट हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम एक फिक्स्ड असेट जो है परचेज कर लेते हैं और दोनों ही उस असेट को यूज करेंगे, तो उसको लेवल ऑफ कोलैबोरेशन बोला जाता है। तो दो असेट परचेज करने की बजाय जब दो पर्सन मिलकर एक ही असेट को परचेज करे और इसे यूज करे, तो वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। और अगर हम कोलैबोरेशन नहीं करते तो दोनों को अलग अलग असेट परचेज करनी होगी, उस केस में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बैंक है, वेरियस टाइप के बैंक है जो आपको एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर सभी बैंक अपना एटीएम मशीन को सब जगह एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दे तो उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगी। इसलिए बैंक क्या करते हैं, वो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन को यूज करते हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक अकाउंट में है या फिर स्टेट बैंक में, किसी भी बैंक अकाउंट में आपका बैंक में आपका अकाउंट हो, आप किसी भी एटीएम मशीन से एटीएम से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। चाहे आपके पास एचडीएफसी का एटीएम कार्ड हो या एसबीआई का, आप एक्सिस बैंक की एटीएम मशीन से भी मनी विड्रॉ कर सकते हो। तो वो लेवल ऑफ कोलैबोरेशन है जिससे बैंक को रेंटल इनकम मिलती है कि वो एटीएम मशीन में पैसा खुद अपने लेवल पर मनी इन्वेस्ट ना करके दूसरे बैंक जो है उसके बैंक के एटीएम को यूज करे और उसे रेंट से इनकम हो जाए। ऐसे ही हमारा एक एग्जांपल और हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक बिल्डिंग है जिसमें ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। जो आपका ग्राउंड फ्लोर है इस पे आपकी जो है प्रिंटिंग प्रेस है, और जो फर्स्ट फ्लोर है इस पे कोई कोचिंग सेंटर है। तो कोचिंग सेंटर पे जो आपकी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके ओनर को अब प्रिंटिंग मशीन चाहिए, मीन्स उसको प्रिंटर चाहिए। तो इसने ये विचार किया कि ये थॉट थी कि मेरे लिए जो प्रिंटर है उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं होगा, इसलिए उसने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राउंड फ्लोर पर जो प्रिंटिंग प्रेस के ओनर से उससे बात की कि क्यों ना मिलकर हम दोनों प्रिंटर को परचेज कर लेते हैं। मेरे लिए प्रिंटर की जो यूज है वो कम है और बाकी टाइम प्रिंटर को आप यूज कर लो। तो दोनों ही बिजनेस के ओनर, कोचिंग सेंटर का ओनर और प्रिंटिंग मशीन,
दोनों ओनर एग्री हो गए और उन्होंने एक प्रिंटर परचेज कर लिया, दोनों ही उस प्रिंटर को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब प्रिंटिंग प्रेस ने अलग से प्रिंटर पे इन्वेस्टमेंट नहीं की और कोचिंग सेंटर ने अलग से प्रिंटर पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, दोनों ही ओनर ने मिलकर उस प्रिंटर को परचेज किया है। तो इसका मतलब यहाँ पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, उसको बोला जाता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। आई होप इट्स क्लियर टू यू। टुडे आई डिस्कस्ड कंप्लीट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिक्स कैपिटल। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।